This session will be partially in English and most of it with the farmers will be conversating in Hindi. So you can like wear your translators. Over the past 12 plus years as a physiologist with CIMMYT, CISA program, my work has spanned in diverse areas. That includes agronomy, soil, weeds, trainings, open data, etc., etc. But I would say the most rewarding part that has been close to my heart is working with the ground level and interacting with farmers who are the true soul of our journey and trying to make little difference in their lives. As Dr. Burlock rightly said, take it to the farmer, which is also the theme of Dialogue Next India. I feel fortunate that I got a chance to get in touch with farmers across several states in India. But to special mention, my work has been dedicatedly for the states of Bihar and Uttar Pradesh, states from the eastern Indo-Gangetic plain where we launch and we want to see the second green revolution happening. One, because it has huge yield gaps where we can fill up, and second, because it has immense potential which we can harness. Our initial focus was on technology adoption and building the capacity of individual farmers. Gradually, we shifted to social inclusion, especially with women groups like Creation Welfare Society, these were an organized groups, and Mahila Samakhya and very known state livelihood mission of Bihar Jivika. We could scale our efforts and influence despite challenges with training, machinery access and technology adoption. Trust grew step by step with us and participation expanded steadily. Today, 2 of those farmers are with us, who are representatives of many like them. I'm delighted to steer today's dialogue with 2 inspiring change makers. It is my privilege to welcome Mrs. Poonam Devi and Mrs. Seema Devi from Sakra block of Muzaffarpur, Bihar, a very agrarian-dominated state. Both began as subsistence farmer in the year 2013 and 2015. They have journeyed towards self-sufficiency, recognition, and leadership. As a progressive farmer, they embody how small incremental changes can make, a lot of difference that is lasting, and that is like, they are examples for many such farmers like them. Please join me in giving a warm round of applause to our change makers, Poonam ji and Seema ji from Bihar. मेरा सवाल पूनम जी आपसे ये है कि 2013 से पहले आप खेती किस तरह से करते थे? क्या उस समय खेती करने में आपको कोई दिक्कत आती थी या सही चल रहा था? 2013 से बहुत ही परेशानी होती थी, क्योंकि हम छोटा किसान हैं, हम 3 से 4 कट्ठा खेती करते थे। तो उस समय सबसे बड़ी बात है कि सर्विस प्रोवाइडर को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो जो है बड़े किसान को ही पहले सेवा दे पाता था। तो फिर हम लोग को जो है सो गेहूं का बुआई में दिक्कत होता था और सही से उपज नहीं हो पा रहा था। तो इससे जो है हमको बहुत ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ा। आप CIMMYT के बारे में कैसे जाने? क्या उनकी परियोजनाओं के बारे में आपको कोई बताने आया था या किस तरह से जुड़े CIMMYT से? हम क्रिएशन वेलफेयर सोसाइटी से स्वयं सहायता से जुड़े हुए हैं। उसी में CIMMYT से सर और मैडम आए हुए थे और वैज्ञानिक तकनीक से खेती के बारे में समझाएं और फिर दूसरे खेत में जाके दिखाएं कि कैसे जो जीरो टिलेज से बुआई होता है और अगैती बुआई से क्या फ़ायदा होता है और अच्छे जो प्रभेद है बीज अच्छे किस्म का, उससे अगर बुआई करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है। तो इसी के बारे में हमको जानकारी मिला, तो हमने फिर घर में आके और चर्चा किए। चर्चा करने के बाद फिर हमने जो समूह में दीदी लोग हैं उनसे बातें किए और 2013 से हम लोगों ने जीरो टिलेज की बुआई किए। जीरो टिलेज से बुआई करने से फ़ायदा है
कि जो हम लोग जो खर्चा करते हैं उसे यानी कि कम खर्च में ज़्यादा पैदावार होता है और उससे बचत होती है, जिससे कि हम लोग बाकी जो समूह की दीदी हैं उनको भी फायदा होता है और अच्छे से इसका हम लोग यानी कि फ़ायदा लेते हैं। शुरुआती वक्त में आपको ये मतलब ऐसा नहीं लगा कि आप छोटे किसान हैं, इससे रिस्क हो सकता है, नई तकनीक है, उसके कारण से आप लोगों को कोई इससे रिस्क हो? तो हम लोग को बहुत ही परेशानी हुई, लेकिन घर से भी हम लोग को माने कि दिक्कत हुआ कि करने नहीं दे रहे थे। फिर हमको समाज से भी सामना करना पड़ा, क्योंकि समाज के लोग बोलते थे क्या क्या सीख के आ गई है, तो इससे भी परेशानी होती थी। लेकिन जब हम करके बताए तो उन लोग ने समझे और फिर है अगल बगल के गांव के लोग हैं जो करना शुरू किए। सीमा जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि इन तकनीकों को अपनाने से आपको और क्या फ़ायदा लगा? आपके अपने खेतों में कैसा मतलब कि कुछ फ़ायदा हुआ या कैसा महसूस किए इन तकनीकों को अपनाने के दौरान? जीरो टेक्नोलॉजी अपनाने के बाद लगा कि मतलब कम खर्च में और मतलब ज़्यादा उपज आया, बीज भी कम लगा। 2 किलो का कट्ठा पहले लगता था 3 किलो का कट्ठा, 2 किलो का कट्ठा दिए, उपज में अच्छा आया। अगैती बुआई किए तो मतलब पछुआ हवा मतलब नहीं चुपटा, गेहूँ दूध नहीं सूखा, वजन बढ़ा। 1 कुंटल का कट्ठा हमारे खेत में उपज होता है। अगल बगल का लोग भी देखते हैं कि तुम्हारे खेत में इतना उपज कैसे हुआ। हम बोले कि जीरो टेस्ट किए हैं, ऐसे ऐसे 2 किलो का कट्ठा लगा है, 4 पानी भी देते हैं, इसलिए मतलब उपज में बढ़ोतरी हुई। 4 पानी पहले से देते थे या फिर किसी ने बताया कि 4-5 पानी लगना चाहिए जिससे? और बताइए। सीमिट से ही ट्रेनिंग मिला था कि जैसे आप लोग के अगर भूख है 4 रोटी का, अगर 2 रोटी मिलेगा तो क्या आपको पेट भरेगा? उसी तरह से खेत में अगर आप अच्छे से खाद नहीं दीजिएगा, पानी नहीं सिंचाई नहीं कीजिएगा तो क्या फसल अच्छा आप ले पाइएगा? तो हम लोग ने सीमिट से ही मिला ट्रेनिंग, और फिर हम लोग ना पहले 1 पानी देते थे, वो भी 22 दिन के बाद देते थे। 1 ही पानी पर जो होना होता था तो हुआ। लेकिन जब हम सीमिट से ट्रेनिंग लिए तो हम लोगों ने 5 पानी दिए। 5 पानी देने से फ़ायदा क्या होता है, जो पैदावार अच्छा होता है। पहले क्या था कि हम लोग को 40 से 45 केजी पर कट्ठा होता था, लेकिन जब हम लोग ने वैज्ञानिक तकनीक अपनाए तब से जो है हम यानी 90 से 100 क्विंटल के लगभग हम लोग का उपज हो जाता है। तो हम लोगों ने ये वैज्ञानिक तकनीक अपनाए और जितने भी गांव के और अगल बगल के लोग ने इस पद्धति को अपनाते हैं और उनको भी बहुत ही अच्छा लगा एक दूसरे को देख के। And make you understand that their seed rates, they reduce the seed rates, you know, from 60 kilos per acre to 40 kilos, and they also, like, you know, gained just double the amount of yield that they were taking by maintaining the population, and they have also shifted to early sowing. I'll just, like, you know, try to probe. आपने पहले बिजाई कब होता था आप लोगों के खेतों में? पहले हम लोग का एक परंपरागत खेती होता था कि छठ पूजा जो बिहार में होती है, तो वो पूजा हो जाने के बाद जो है गेहूं का बुआई के बारे में सोचते थे। तो कुछ लोग बोलते थे कि नहीं अभी गर्मा है, सो अगर मुंह से भाप निकलेगा तब हम गेहूं का बुआई करेंगे। ऐसा था हमारे गांव में और समाज में। और अब कब करते हैं आपके? हम लोग के यहाँ अगैती बुआई होता है
और जो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हम लोग उन्हें बुआई कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो पछुआ हवा जो बहती है उसे गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचता है और अच्छा पैदावार होता है। अगर वही लेट से करने से क्या होता है कि गेहूं जो है से वजन घट जाता है, तो हमारे खेत में अच्छा गेहूं नहीं हो पाता है। लेकिन सीमिट से जो हमें जानकारी मिली, इससे हम क्या हमारे समाज के और अगल बगल के लोग भी अपनाते हैं इस पद्धति को। इससे जो है सो सबको फायदा होता है। महिलाएं हमेशा से खेतों में काम करने में पुरुषों के साथ कंधा मिला के चली हैं, लेकिन क्या आपको लगा ऐसा कि जैसे आप किसी इस प्रोग्राम से जुड़े या अन्य कोई कृषि से रिलेटेड प्रोग्राम से जुड़े, तो आपको अपने आप में कुछ बदलाव या अपने निजी होता है ना, ये एक लाइफ में कुछ बदलाव महसूस हुआ? जी, खेती एक ऐसा चीज़ है जो हमको तो होता ही फायदा है और समाज में भी परिवर्तन होता है। इससे क्या हुआ कि एक समाज में मेरी पहचान बनी। पहले पहचान क्या था कि फलाने की पत्नी, फलाने की माँ और फलाने की बहू है। लेकिन जब से हमने कृषि से जुड़े और जुड़ने के बाद से क्या है कि समाज में मेरी बहुत ही सम्मान मिलता है। और जब रबी फसल होता है तो उस समय जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हम लोग से बात करते हैं कि आप लोग का कब से बुआई शुरू होगा, क्योंकि मेरे पास संगठन है और जो संगठन में जो मजबूती होती है वो कहीं नहीं होता है। इसीलिए हम लोग ने संगठन बनाए हैं महिलाओं का, जो हम लोग को बहुत ही फायदा होता है। इससे दूसरे को भी हम लोग फायदा पहुंचाते हैं। आज हमारे समाज में बहुत ही सम्मान मिलता है। मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करती हूं और मेरा जो आर्थिक स्थिति है उससे बहुत ही सुधार हुई है, जिससे मैं अपने आप को, बच्चे को घर में भी जो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई, घर का रहन सहन में भी बदलाव हुआ है। सीमा जी, आप बताएं कि आपको बचे हुए वक्त, मशीनीकरण के कारण जो बचे हुए वक्त है, आप उसको कैसे उपयोग कर रही हैं? हमने मतलब पास उपज हमें मतलब मक्का थ्रेसर करने, मक्का दौनी करने वाला मशीन खरीदे। उससे मतलब पहले हाथ से छुड़ाते थे, अब मतलब मशीन से छुड़ाते हैं। उससे मतलब खर्च भी बचा और मतलब आगे बढ़ के मतलब बच्चों को भी मतलब पढ़ाएं। अभी मेरा लड़का बीएड मतलब बीएड किए हुए हैं, सीटेस निकाले हुए हैं। So she's trying to say that, from the time that they have saved and utilized, earning more income, they have started giving a better life. Small changes may not be affecting people like us, but such changes are really very relevant to the smallholder farmers. Generally, they are prevalent in Bihar, state of Bihar and eastern Uttar Pradesh. And when we talk about, all the eastern regions of West Bengal and Odisha. So these little changes I am able to capture in the limited time that I have been given, and they are real change makers when we go for doing some extension work with them. And it's a bit of emotional connect, that we have with them, like a little of difference that may help them to do, and overcome something that they want to achieve in this little money, that extra money that they earn. So, धन्यवाद आप दोनों का. That brings us to the end of our session with these inspiring women. Before they leave the stage, I would like to thank you so much, धन्यवाद, for sharing their time, experience and wisdom with us. As we conclude, I want to emphasize that true progress lies not only in building a resilient agricultural system, but also in ensuring inclusiveness. Technology itself is neutral. What matters is whether its adoption is accessible to everyone. Whether a farmer is a man or a woman, if they have the willingness and the capacity to take risk and embrace innovation that improve their farming practices, then we must take it to the farmer. Thank you so much.